they will join or not. So have you guys created your LinkedIn profiles? Yes, sir. Okay, just raise hand. And what about GitHub? Yeah, good. So, and one thing more I will suggest, create an account on HackerRank. You heard all about HackerRank? Uh, so create your account on HackerRank and start with C. Okay, from the basic C is there, C++ is there. So I will suggest start with C. Then if you get to the mastery on C, then later on you can like there is no need to learn languages, multiple languages. If you are thinking I will learn C, C++, Java, so the placement will be easy. That is not like that. Then anyone in the like companies don't want you to like know multiple language because they have already people for that. So try to get one language, but you have to be strong in that. So I'll suggest go because you are in embedded system electronics. Complete electronics works with C only. So I will highly recommend go with C because see if you practice on hacker rank, at least practice hour or 2 hour daily. 1 hour at least you practice in any circumstances, but practice for 1 hour because when you do programming on hacker rank, na, in HackerRank itself, there are competition for hiring, and if you are if you are good in coding, na, so multiple companies schedule the hackathons. So you can go in them, crack them, and just give an interview, and you will get hired. So coding is a must. When I get placed in Honeywell, so Honeywell ka it's like there was a first round. They've given multiple choice question, around 40 question to shortlist. We are around 40, 200 students. So there was a multiple choice question and hacker rank hackathon, which is on hacker rank. So it contains three question. So we have to do that three question within 1.5 hour. So from 200 people, only 40 got shortlisted. Okay. After HackerRank, there was a technical round. So in technical round, around from technical round, from 40, around 9 or 10 were selected. And from that, after HR round, only 7 are selected. So that's what I'm saying. Hackathons are very important. So start with HackerRank, create a account on GitHub, and create a profile on LinkedIn. These are the three must do thing. Okay, you have to showcase that you are here. That's only the recruiter will know, na. Okay, if I want to hire someone who has already who will already know GitHub and who already know Git is already using good rank. You can post your stars on HackerRank. Yeah, I have got 5 stars in C. That you can post. I got 3 stars in C++ and Python. You can post on LinkedIn. That will showcase your like and try to shortlist some companies. Let's say I just wanted to because I cannot show you because I have a list of companies. I have shortlisted around 30 companies. Okay, so these company I will work on. So I have connected the HRs of this company. So आपको भी मैं ये बोलूँगा like एक list create करो and try to connect with these HRs of that company. If you search on LinkedIn ना like Nokia HR. So HRs of Nokia will be there. So try to send them request like I wanted to I am very interested to work with your company or something like that. So try to connect with them. So once you will ready with for job, you don't have to search everywhere. Okay. And second thing, have you guys like any plan for projects? Have you discussed among yourself or anything you are want to work with me or any idea you have discussed? Anyone, Deepak, Aditya, Rajat, Deepika, sorry. So see, my point is fourth year is critical for project.
So you cannot complete your fourth year without project, and that project will get you placed in some good company also. So that is important thing to within 2 or 3 week. This is starting time. You should get your project idea should be clear. Okay, I will work on this. So for that, I have to learn C. I have to learn one RTOS. Anything I have to learn one microcontroller architecture. So you have to clear on that. Okay, then only you can start. So project idea is one critical thing. And so see, one thing आपको ये समझना पड़ेगा, like this is your fourth year. या तो आप अभी काम करो विद इन दिस 2 सेमेस्टर, आप पढ़ो, आप एक्सप्लोर करो थिंग्स को. अदरवाइज आपका कंप्लीशन के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा. ठीक है. So that's what most of the student, majority of the student in fourth year, they will waste this year because they think यार ओके यार कहीं कोई कोई रिलेटिव बोल दिया होगा, अरे यार मैं लगवा दूंगा, कोई कुछ किसी को कुछ होगा ये वो, कोई किसी का रेफरेंस होगा, यहाँ लग जाएगा वहाँ लग जाएगा. बट अगर आपका आपको फाइनेंशियली बहुत, अगर आपका सपोर्ट अच्छा है, आपकी स्टडीज अच्छी है, तो आई विल सजेस्ट गो फॉर एमटेक. बट आपको अगर लाइक बीटेक के बाद आपको सपोर्ट नहीं मिल सकता, घर का फाइनेंशियल वो ठीक नहीं है, आप पढ़ने में भी उतना इंटरेस्ट नहीं है आगे, तो इफ़ यू आर गेटिंग फॉर जॉब देन अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा. अदरवाइज देन फिर बीटेक कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, घर का प्रेशर. फिर से आफ्टर कंप्लीटिंग ना देयर इज लाइक नथिंग, यू विल सी लाइक यू आर अ फेलियर काइंड ऑफ थिंग. सो अभी से स्टार्ट करो. अभी 2 सेमेस्टर हैं, बहुत टाइम है. मैंने सीडेक का कोर्स होता है 6 महीने का, लाइक एक सेमेस्टर. बट इतना ज़्यादा कम मतलब हेडेक होता है उसमें, लाइक 4 years ऑफ मोर देन 4 year यू हैव टू रीड इन 6 month. सो अभी से स्टार्ट करो. I will share today what are the like roadmap for embedded engineer. I just wanted to discuss. Anyone is interested in VLSI? So see, yeah. Hi Deepika, you're saying something. No, sir. So what I'm trying to say is, there are two basically field in electronics. One is on the embedded software, and one is the hardware side, VLSI. सो अगर आपका इंटरेस्ट वीएलएसआई साइड है, सो आई विल सजेस्ट क्लियर, नो डाउट, लाइक मैंने मेरा फील्ड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का है. ओके, सो मैं आपको उसमें ही गाइड कर सकता हूँ. बट आपका अगर वीएलएसआई में है तो आई विल सजेस्ट ओनली टू गुड वेज. either you prepare for mtech, get a good college and study there, or you go for cdec. cdec में 6 महीने का वीएलएसआई का कोर्स है, आप वो करो. बट उसके लिए सीडेक में भी रैंक लाना पड़ेगा अंडर 400. सो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. मेरा सीडेक में ऑल इंडिया रैंक 700 आया था. तो मुझको सीडेक के कुछ सेंटर ही अच्छे हैं, लाइक पुणे का एक अच्छा है, हैदराबाद का अच्छा है. पुणे के दो दो सेंटर अच्छे हैं, हेडक्वार्टर और सनबीम करड़, और एक हैदराबाद का अच्छा है. तो मेरी रैंक ऑल इंडिया 700 आई थी, तो मुझे हैदराबाद मिल गया था. बट वीएलएसआई के लिए बहुत कम वो रहती है प्लेस. तो वीएलएसआई में अगर जाना है तो अराउंड 200 से 300 के अंदर ही रैंक आनी चाहिए. तो वो आपको करना पड़ेगा. अब सीडेक के 3 पेपर होते हैं, एक जनरल एप्टीट्यूड, और एक लाइक कोडिंग बेस होता है सी या सी प्लस प्लस पे, सी जावा से मिक्सचर ऑपरेटिंग सिस्टम. और एक थ्री सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए होता है. वो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हो तभी आपको तीनों पेपर देने पड़ेंगे. अदरवाइज अगर कंप्यूटर का करना है, लाइक डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग, सो उसमें फर्स्ट और सेकंड पेपर ही होते हैं. सो ये चीज़ आप ध्यान में रखना. अगर वीएलएसआई का इंटरेस्ट है तो आप सीडेक के लिए जा सकते हो. और भी इंस्टीट्यूट है, लाइक वेक्टर है, वो भी ट्रेनिंग कराता है, कर्नल मास्टर. बट सबसे बेस्ट सीडेक है बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता है. ओके, एंड ओके, विल शेयर, आई शेयर माई स्क्रीन, screen. Let me know it's visible or not. Huh?
विजिबल है? Yes, sir. Okay. So I will share the GitHub link of this profile. See, this is from someone called, his name is, I don't know about the author. You can read it. So, see, here is the roadmap. You can see embedded system engineering roadmap. Okay, here whatever highlighted with yellow, that is must. If you if you want to go in the embedded industry, these skills are must. Okay, and what is like this uh, orange shaded? See, you can see Bluetooth. These are orange shaded, na? So these are like, if you have, that is very good. They will give you some preference over others. If you don't have, there is no need to worry. But the yellow thing, what is highlighted here, that is like that is must to know if you want to go into एम्बेडेड इंडस्ट्री. सो क्या होता है, अभी फोर्थ ईयर में ये सब आपको पता नहीं रहेगा, ओके, कि मुझको क्या पढ़ना. आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, फिर जब आप इंडस्ट्री में जाने के लिए, फ्रेशर इसलिए हायर नहीं होते ना, उनको ये स्किल्स आती नहीं है. तो क्या होता है, फिर ये सीडेक जैसे इंस्टीट्यूट यही चीज़ें सिखाते हैं वो, तो फिर वो वही फ्रेशर हायर हो जाते हैं. ठीक है. बट अगर आपको अभी से पता चल जाए कि इन चीज़ों को सीखने से ही कोई कंपनी, फ्रेशर्स को हायर इसलिए नहीं करती कंपनी, बिकॉज दे नो कि आप उनको हायर करो, फिर उनको सिखाओ, फिर सिखाते सिखाते एक साल बाद वो दूसरी कंपनी में स्विच कर देगा. इसलिए कोई फ्रेशर्स को हायर नहीं करना चाहता. बट अगर फ्रेशर्स को वो अपने रिज्यूमे में डाले कि मुझको ये सब स्किल्स आती है, उसको यू आर आई टू सी एस पी आई का नॉलेज है, उसने जी सी 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 मैक पे काम किया है, तो समझेगा बंदा, अरे यार ये तो डायरेक्टली मेरे प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है, उसको हायर करते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी. ये चीज़ समझते कब है, आप बीटेक फोर्थ ईयर कंप्लीट कर लोगे, जब जाओगे रिक्रूटमेंट के लिए, यहाँ वहाँ सर्च करोगे, तब आपको पता चलेगा, अरे यार ये सब चीज़ें आना ज़रूरी है, इसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा काम. फिर आप या तो कहीं कोर्स लोगे. अब ये सब सिखाने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स है जो लाख रुपए, अब सीडेक खुद ही 1 लाख रुपए लगभग लगते हैं, और आपका रहना खाना लेके 1.5 2 लाख रुपए आपका खर्चा हो जाएगा. ठीक है. और बहुत सारे छोटे मोटे ट्यूटोरियल्स वगैरह लोग चलाते हैं, या यूडीमी से, कहीं से भी आप जाओगे, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा अलग से ही. सो बेटर, अभी आपके पास टाइम है, फोर्थ ईयर में एक प्रोजेक्ट लो, ज़्यादा स्टडीज होती नहीं, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करो. एटलीस्ट ये जो येलो हाईलाइटेड थिंग्स है ना, इनमें से भी अगर आपको सब नहीं होता तो कुछ एटलीस्ट करो. अब मैं गारंटी दे दूंगा कि ये अगर आपके रिज्यूमे में है और इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा, आपने बताया, ले गया, तो आपका पक्का प्लेसमेंट पक्का है. अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में. मैं ये कॉग्निजेंट, विप्रो, टीसीएस की बात नहीं कर रहा, इनके बारे में सोचना भी मत. ठीक है. जाओगे 3 साल वहाँ धक्के खाओगे. बेंच पे आधा ज़्यादा इनमें बेंच पे बैठा के रखते हैं, पता है. पूरे साल साल भर तुम बैठे रहोगे, कोई काम नहीं रहता करने को. बस वो पैसा देते रहेंगे, तुमको लगेगा अरे यार पैसा मिल रहा है, लेकिन तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाता है. तो इन कंपनी के बारे में सोचो मत. अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओ, कुछ प्रोडक्ट्स पे काम करो, अपना एक अच्छा करियर बनाओ, अपना आगे मूव ऑन करो. ठीक है. अब क्या होगा, बीटेक के बाद ज्यादातर लोग, अरे चलो हाँ विप्रो आई है, चलो चलो प्लेसमेंट दे आए, हो गया 3 लाख का पैकेज मिल गया, वो खुश हो गए, चलो 2 साल 3 साल वहां धक्के खाए. उससे अच्छा है अपने आप को 6 महीने दो, चाहे आप सीडेक में जाओ या अभी मेहनत करो, और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए एटलीस्ट 5 महीने 6 महीने फाइट करो इंटरव्यू के लिए. एक कंपनी लो, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा. ठीक है. एक बार स्टार्ट करिए करियर फ्यूचर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से, तो आपको मिलती चली जाएगी. एक बार 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना, लोग चल के आते हैं हायरिंग कराने के लिए, भाई मेरा ज्वाइन कर लो, मेरा ज्वाइन कर लो. अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है तो लोग चल के आते हैं. सो इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है, ये देखो, ये बाउंड्री है ना हार्डवेयर की. तो फिर स्टार्ट विद द हार्डवेयर पार्ट. आपको हार्डवेयर में क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए. अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स का फंडामेंटल, बेसिक मैथ और कैलकुलस, ये बस नॉलेज होनी चाहिए. आपको ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन आएंगे, नहीं. इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बेसिक्स, जैसे आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टर क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है. ये सब तो बेसिक, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, आपको आना ही चाहिए. आई थिंक सबको आती होगी, क्यों? एनीवन? कैपेसिटर, रजिस्टर, ये सब तो पता होगा ना. Yes, sir. हाँ. तो ये बेसिक वही है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपको
लाइक कंपोनेंट इन द सेंस मेमोरी क्या होती है, एडीसी डीएसी क्या होता है, और कैपेसिटर कैसे यूज होता है, कैपेसिटर क्यों यूज होता है, रजिस्टर क्यों क्या होता है, क्यों यूज होता है, और बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स है लाइक लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, मॉसफेट क्या है, एफईटीज क्या है, फ्लिप फ्लॉप्स क्या है। बेसिक ये तो आना ही चाहिए कि ये बुलियन अलजेब्रा लाइक एंड गेट नॉर गेट, ये सब बेसिक आपके मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये तो आता ही होगा यार इसको। और उसके बाद थोड़ा बहुत कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ो कि किस किस टाइप के कंप्यूटर आर्किटेक्चर होते हैं। एक वॉन न्यूमन टाइप का होता है, एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है, कैसे ये काम करते हैं, क्या डिफरेंस होता है, कब कब किसको किस किस सिनेरियो में यूज करना होता है। सो इन सब के बारे में आप देख, जैसे ये है ना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, आप इसको यहाँ से उठाओ, सीधा चैट जीपीटी में डालो व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उसमें लिस्ट आएगी, फिर एक एक के बारे में जिसको आप जिसके बारे में आपको नहीं पता वो पढ़ना शुरू करो। ऐसे ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ सकते हो। और एटलीस्ट अभी से ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होने का आपके पास एटलीस्ट एक मल्टीमीटर होना चाहिए, लॉजिक एनालाइजर होना चाहिए। ऑसिलोस्कोप तो नहीं रख सकते, महंगा आता है, लाइक 50,000 60,000 का। बट अगर फोर्थ ईयर लैब में है, मुझे मुझे पता है, तो ट्राई करो किसी लैब असिस्टेंट से मिलके उसका सीखने का ट्राई करो कि सर अगर पीडब्ल्यूएम वेव है तो कैसे एनालाइज करेंगे, अगर I2C से कोई सिग्नल आ रहा है तो कैसे देखेंगे, स्क्वायर सिग्नल कैसे होते हैं। थोड़ा सा एटलीस्ट बेसिक समझने का वो करो कि, और लॉजिक एनालाइजर अगर हो, मल्टीमीटर तो होगा ही होगा लैब में, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसका यूटिलाइज नहीं करते, वहाँ पड़ा रहता है। बट बोलो, जब आप टीचर से बोलोगे कि मैडम मुझको सीखना है ये, आप लैब अटेंडेंट से मिलो, अगर नहीं सिखाते तो आप उनकी कंप्लेन करोगे ये सिखा नहीं रहे जो भी। बट आप ट्राई करो। ब्रेड बोर्ड होंगे, ब्रेड बोर्ड सुना है किसी ने, सुना ही होगा। सर। Yes, sir. हाँ, सो ब्रेडबोर्ड पे एक छोटा सर्किट बनाने का ट्राई करो, लाइक कोई एलईडीज का, कुछ स्विचेस लगाना शुरू करो। पुल अप पुल डाउन रजिस्टर्स क्या होते हैं वो देखना शुरू करो। ठीक है। सो ये तो है। अब ये जो पीसीबी डिजाइन और सोल्डरिंग है, अगर ये आपको वीएलएसआई अगर फील्ड में जाना है तो ये सब चीजें आनी चाहिए। ठीक है। बट अगर नहीं वीएलएसआई में जाना तो इतना, ये जो येलो हाईलाइटेड थिंग्स है ये बहुत है। ये देखो लिखा है ना, FPGA design is a crucial task primarily utilized in embedded system that is require high customization and configurability. So FPGA design, VLSI और ये सब अगर आपको VLSI फील्ड में जाना है तो आपको आना चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी। फिर सेकंड चीज आती है, अब आते हैं हम माइक्रो कंट्रोलर सॉफ्टवेयर इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल। सो अभी आते हैं सॉफ्टवेयर पे। ओके। सो फर्स्ट थिंग, सब लोग सी पे अभी काम करना चालू करो, हैकर रैंक से स्टार्ट करो। कुछ अच्छे कोर्सेज हैं यूडीमी पे, चाहे वो परचेस कर लो, या यूट्यूब पे 50 कोर्स हैं। किसी का एक सी का बेसिक पढ़ना शुरू करो। एक बुक आती है, सब लोग नोट पैड है तो लिख लो, सी एंड डाटा स्ट्रक्चर, सी बाई सम श्रीवास्तवा करके, मैं लिंक भेजूंगा व्हाट्सएप पे। वो बुक ले लो, या फिर आप कोई यूट्यूब का कोर्स लेके सी पढ़ना चालू करो और हैकर रैंक पे प्रैक्टिस करना चालू करो। ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तुमको लग गया कि मुझको सी बहुत आ गई है ये वो, तो नेक्स्ट पे आप C++ जा सकते हो। थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना असेंबली का, कि अगर आप लिखा है तो एटलीस्ट समझ पाओ कि ये हाँ क्या कहना चाहता है। तो थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग असेंबली की ज़रूरी है। बट ये जो C++ है, नेक्स्ट लेवल पे आप प्रिपेयर कर सकते हो। अभी के लिए सी पे फोकस करो। अब बिल्ड सिस्टम, ये जो चीज़ें हैं ना, अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं बोलूँगा ये चीज़ें सर्च करो कि व्हाट इज़ जीसीसी, व्हाट इज़ मेक, व्हाट इज़ सी मेक, तो समझ में आएगा कि क्या होता है। जीसीसी एक बिल्ड सिस्टम है, जीसीसी तो पता होगा, लाइक कोई भी सी प्रोग्राम लिनक्स प्लेटफॉर्म पे अगर बिल्ड करना है तो जीसीसी चाहिए होता है। ओके। और मेक क्या है, मेक मैंने बताया था, जैसे अभी तो दो चार प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लिख रहे हो, कोई फंक्शन या कोई लूप बना रहे हो, सिर्फ उसी को कंपाइल करते हो ना। कंपनीज में क्या होता है कि 10-10 हज़ार फाइल्स होती हैं,
हर एक फाइल की एक हेडर फाइल होती है। सो 10-10 हज़ार फाइल्स को कोई बैठ के कंपाइल नहीं कर सकता कि एक एक फाइल का नाम लिखे और कंपाइल करे। तो उसमें एक सी मेक फाइल बनाई जाती है। मेक फाइल में आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या होता है। मेक फाइल में क्या होता है, सबके फाइल, जो फाइल है, सी फाइल है या डॉट एच फाइल है, वो ऐड करके फिर उसको एक साथ ही वो बिल्ड करके एक एग्जीक्यूटेबल जनरेट करती है। तो सी और सी मेक ये बहुत ज़रूरी है सीखना अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है। 90% बीटेक पास आउट को ये नाम नहीं सुना रहता है कि ये होती क्या चीज़ें हैं। तो सी और सी मेक, जीसीसी, ये मस्ट है आना। मेक पहले समझो, मेक थोड़ा टफ होता है, ठीक है। सी मेक एक टूल है। तो जब मेक का मतलब एटलीस्ट बेसिक फंडामेंटल समझ में आ जाए ना, तो सी मेक पढ़ना चालू करो क्या होता है, और सी मेक का सीख लो। अगर सी मेक आ गया ना तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको एक वो मिलेगा कि हाँ भाई इसको सी मेक आता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस बंदों को, 2-2 साल बंदों को अगर बोला जाए सी मेक का फाइल क्रिएट करो तो नहीं कर पाते हैं। तो सी में 2-4 दिन का कोर्स है इसका, अभी मैं वो लिंक शेयर कर सकता हूँ, अभी शेयर करूँगा। सो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और मैं बोल रहा हूँ ना गिट और गिटहब के बारे में बार बार। तो सी वर्जन कंट्रोल आपको आना चाहिए, जिसमें गिट या एसवीएन, एसवीएन एक इंडस्ट्रियल टूल है, लाइक उसको बोलते हैं पीवीसीएस। सो वो तो आप इंडस्ट्री में जाओगे तो मिलेगा, बट गिट एक ओपन सोर्स है। तो गिट के भी हजारों ट्यूटोरियल हैं यूट्यूब पे। जस्ट लाइक गिट ट्यूटोरियल 50 आ जाएंगे। गिट का एक बार सीखो, अपने लोकल कंप्यूटर में गिट रिपोजिटरी स्टार्ट कैसे करना है विजुअल स्टूडियो कोड में, फिर कोड को गिटहब पे पुश कैसे करना है। गिटहब क्या है कि आपका एक स्टोरेज फैसिलिटी जहां आपकी गिट रिपोजिटरी सेव होती है। गिट क्या एक मैकेनिज्म है कमिट करने का। So, इसके बारे में पढ़ो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट ये जानना एकदम लाइक 100% मस्ट है। ठीक है। अब ये हो गया। अब एक आता है कि लेट्स से आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो आपको कुछ माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर में जीपीआईओस क्या होती है, एडीसी एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, टाइमर्स क्या होते हैं, पीडब्ल्यूएम, ये वेव्स क्या कैसी होती हैं, पीडब्ल्यूएम के बारे में पढ़ो, इंटरप्ट एंड वॉच डॉग। इतना अगर आ गया तो वो समझ जाएगा हाँ बंदे को नॉलेज है। अगर इसी में से सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं में से ज़्यादातर इंटरप्ट, और इंटरप्ट से ही बहुत सारे होते हैं क्योंकि बच्चों को इंटरप्ट समझ नहीं आता जल्दी। सो इंटरप्ट पे ध्यान देना। एंड टू वर्क, लाइक अगर एम्बेडेड सिस्टम पे वर्क करना है तो हम एरर तो आएंगे ही, बग्स तो आएंगे ही। तो उनको डिबग करने के लिए ये टूल्स होते हैं, जी टैक, सीरियल वायर डिबगर, एसडब्ल्यूडी, और जीडीबी। जीडीबी तो मस्ट है, जीडीबी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। जीडीबी सीखो, जेटैक क्या होता है, हाउ टू यूज इट। ये ये बहुत ही मस्ट टूल है, अगर एम्बेडेड सिस्टम पे वर्क करना है तो ये आना चाहिए। और ये सब पढ़ो, इनके बारे में पढ़ो और हाउ टू वर्क विद देम। और मैं उस दिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दीज आर रियल टाइम, ये रियल टाइम ओएस। फ्री आर्टॉस है, ये अमेजन का है। जाइफर है, नटेक्स है, क्यूएनएक्स है, वीएक्स वर्क। सो मैं आई विल सजेस्ट जाइफर और फ्री आर्टॉस, दोनों में से एक भी कोई अगर आपको अच्छे से आ गया, एक छोटे बोर्ड पे आपने पोर्ट करना सीख लिया, तो वो उतना ही स्किल आपके लिए बहुत, आपके रिज्यूमे में बहुत कुछ ऐड करेगी। सो जाइफर वगैरह सीखने के लिए एक वेबसाइट है। अभी सबको विजिबल है ना स्क्रीन? हेलो। Yes, sir. सो सी, ये एम्बिट्रॉनिक्स वेबसाइट है, इस पे जाओगे तो इस पे बहुत सारे दिए हैं ऑटोमेटिव के बारे में, बूट लोडर के बारे में। ये लास्ट टाइम ही मैंने बताया था। सी ट्यूटोरियल्स हैं, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है सी ट्यूटोरियल्स का, इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह। और अगर रास्पबेरी पाई बोर्ड है आपके पास, नहीं है तो एक रास्पबेरी पाई बोर्ड खरीदो, बहुत अच्छा होता है। या पीको बोर्ड भी शुरू कर लो, रास्पबेरी पीको, वो सस्ता आता है। 8051
तो 50-100 रुपए का मिल जाएगा, उससे शुरू कर लो। कोई भी मैंने कहा था कि एटलीस्ट एक STM32 बोर्ड खरीदने की कोशिश करो। सो STM32 में आपको यूजुअली F4 तो नहीं मिलेगा, बट न्यूक्लियो बोर्ड आता है, STM32 न्यूक्लियो। वो एटलीस्ट परचेस करो, वो आपको लाइफ लॉन्ग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आप कर सकते हो। तो एक वो बोर्ड खरीदने की कोशिश करो। लिनक्स आप पढ़ सकते हो। आर्टॉस में देखो, यहाँ नटेक्स के ट्यूटोरियल हैं, फ्री आर्टॉस के ट्यूटोरियल हैं, और जाइफर के भी ट्यूटोरियल हैं। जाइफर विथ STM32, जाइफर विथ ESP32। अगर इसमें से कोई भी बोर्ड है आपके पास तो एक पढ़ो, या आरटी थ्रेड भी पढ़ सकते हो, ये भी एक आर्टॉस ट्यूटोरियल है। सो इनमें से अब अभी आप फोर्थ ईयर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे ना, तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम ये रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होते हैं, तो रियल वर्ल्ड में ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। और रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको आरटॉस बोला जाता है, और जनरल जो होते हैं उनको सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आना, बिना विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद एनी एम्बेडेड डिवाइस। सो दिस इज मस्ट, ओके। And this is the Linux side you can explore. I will share this link, so keep this with you until you start with, you can start with, यहाँ से आप start करो, एक एक को पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, और एक एक को अपने रिज्यूमे में ऐड करते जाओ, ओके। मेमोरीज के बारे में ये बेसिक नॉलेज, एक दिन में बैठोगे 2 घंटे का आर्टिकल होता है, पढ़ के एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी क्या होती हैं, ये सीख लो। जेटाई हो गया। और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में डेटा स्ट्रक्चर आना जरूरी है, कि लिंक लिस्ट क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट क्या होते हैं, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, ये जरूरी है। ये तीनों आप छोड़ दो अभी। डिजाइन पैटर्न, स्टेट मशीन, आई नॉट कंसीडर। हाँ, मेमोरी एलोकेशन सी में होता है ना, डायनामिक और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। सो मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ना, और डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। अगर ज़्यादा बड़ी कंपनीज का अगर फोकस कर रहे हो, लाइक अमेजन, गूगल, या टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, या फिर आपका NXP हुआ, तो वो लोग डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर अच्छा आना चाहिए उसके लिए। सो ये आपका हो गया बेसिक। अब आते हैं टेस्टिंग के बारे में। आई थिंक अगर मिल जाए यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल वगैरह, तो यूनिट टेस्टिंग सीखो, बिकॉज कोई भी हम डेवलपर जो होता है, वो कोई भी सॉफ्टवेयर बनेगा उसको टेस्ट करना जरूरी होता है, तो उसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, वो आप सीख सकते हो। अदर देन दैट, ये देखो सॉफ्ट स्किल है, सबसे मस्ट है कम्युनिकेशन स्किल। आप फोर्थ ईयर में हो ना, आपका अपना जो दोस्त है, आपका जो ग्रुप है कोई भी, एटलीस्ट 2-3 लोगों का ग्रुप बनाओ, और आपस में ट्राई करो इंग्लिश में बात करने की अभी से। बिकॉज आप सोचोगे ना सीधा जाऊंगा इंटरव्यू में मैं बोल लूंगा, तो वो नहीं होता, ओके। सो अपने फ्रेंड्स से, अपने ग्रुप में कुछ ऐसा बनाओ जो हार्ड वर्किंग लोगों के साथ आप काम करो। या आप लोग ये ग्रुप में कितने, 3-4 लोग हैं ना, एटलीस्ट 4 लोग हैं यहीं, 4 लोग आप आपस में आप बना लो ग्रुप, और एटलीस्ट ट्राई करो कि हम लोग इंग्लिश में ही बात करेंगे। दूसरे हंसते हैं तो हंसने दो, बट वही आप आखिर में आपको जीत दिलाएगा, ओके। मुझे पता है सबकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती, मेरी भी नहीं थी। मेरा एटलीस्ट लाइक वन, जब बीटेक में प्लेसमेंट हुआ था, तो ग्रुप डिस्कशन हो रहा था, वहाँ 4 लाइन बोला, उसके बाद मुझको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोलूँ। तो रिजेक्ट हो गया, नहीं हुआ वहाँ भी। सो इंग्लिश पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो जब आप जैसे हैकर रैंक वगैरह वेबसाइट अगर डेली सॉल्व करोगे, तो ये सब आ जाएगी आपके अंदर, ठीक है। और सब चीज़ें हैं, ये सब पढ़ना आप। सो अभी ये सब स्टार्ट कहाँ से करना है, ये भी इसी में है, इसी इसी गिटहब में। सो आप अगर नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे, तो ये देखो फ्यूचर लर्निंग रिसोर्सेस, सर्चिंग इज योर सुपर पावर। गूगल, गूगल बाबा सबसे वो है। और कोर्सेज एंड यूट्यूब चैनल, ये देखो कोर्सेज, फास्टबिट एकेडमी, डिजिकी, एलिमेंट 14, बेन ईटर, फीस लैब, इतने अच्छे ये यूट्यूब के कोर्सेज हैं ना, मतलब बेसिक से आपको समझाएंगे कि ये चीज़ें होती कहाँ हैं। सो एटलीस्ट इनके फास्टबिट के तो आपको यूडेमी पे मिलेंगे, परचेस करने पड़ते हैं, अराउंड 450 का एक कोर्स मिलेगा। सो आई थिंक 6 और 7 कोर्सेज हैं, अगर वो कंप्लीट कर लिए तो आपको एम्बेडेड, मतलब एम्बेडेड फील्ड के मास्टर बन जाओगे। सो
अगर किसी के पास कूपन ना हो तो मुझको कॉल करना, मैं कूपन कोड है मेरे पास, तो उससे आपको 450 के अराउंड मिल जाएगा कोई भी कोर्स यूडमी पे। डीजी की चैनल बहुत अच्छा है। Some people are made different. वन मिनट। The Tinkerers. हाँ, क्या कह रहे हैं आदित्य? तुम्हारी आवाज़ साफ नहीं आ रही, कैन यू पिंग इन द चैट? हेलो? ये फुल स्क्रीन नहीं होता क्या? आई डोंट नो। ओके, एनी डाउट यू हैव, जस्ट पिंग मी आफ्टर दिस मीटिंग, और personally ping, you can call me also, okay? Aditya, can you hear me? Anyone? Deepika? Yes, sir. We can hear you. Okay. So कोई डाउट है तो यस मुझको सर। बाद में पिंग करना। ओके। सो ओके ओके सर। अभी मैं शेयर कर रहा था, 1 मिनट। ये फास्ट बिट एकेडमी या फिर आपका डीजी की एलिमेंट 14, ये यूट्यूब चैनल से सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे स्टार्टिंग से। सो ये देख सकते हो। आर्डिनो पे अगर काम करना है तो आर्डिनो रिलेटेड ट्यूटोरियल्स यहाँ हैं। प्लेटफॉर्म आयो, एजुकेशनल वेबसाइट, सब कुछ है। STM32 पे अगर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ना, प्रोजेक्ट आइडिया चाहिए तो STM फर्मवेयर के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग विद LTG मॉडेम कैसे बनाना है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको पढ़ना है, ये जो मैं बोल रहा था ये इधर, तो आप खान एकेडमी से पढ़ सकते हो। हियर सी, खान एकेडमी कैलकुलस, कैलकुलस के लेक्चर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक्स में अगर कंपोनेंट के बारे में पढ़ने हैं तो सारे लिंक है इसी में अटैच है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसको फॉलो करना शुरू कर दो, धीरे धीरे डेली 1 और 2 कंप्लीट करते रहो, आपको आ जाएगा। बिल्ड एन 8 बिट कंप्यूटर फ्रॉम स्क्रैच। अब जैसे ये तुमने ये प्रोजेक्ट पे काम किया, 8 बिट कंप्यूटर फ्रॉम स्क्रैच, इसको अपने तुम, वो पूरा बेनिटर का पूरा ट्यूटोरियल है, ठीक है? सो इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है? ये देखो 8 बिट कंप्यूटर इन्होंने बनाया है। सो ऐसे हॉबी, एटलीस्ट हॉबी के लिए स्टार्ट करो। यहाँ देखो इन्होंने बहुत सारे चीज़ें बताई, रजिस्टर क्या होते हैं, एलयू क्या होता है, रैम क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू लॉजिक। जब एक बार एक ना एक पढ़ना शुरू करोगे ना तो धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। सो एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, एम्बेडेड सिस्टम आर्किटेक्चर, एंड लर्न हाउ टू यूज़ मल्टीमीटर। मतलब एटलीस्ट कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ भी नहीं आता ये इसमें से, ज़ीरो हो तुम, अगर अभी 4th ईयर में भी ज़ीरो, कुछ भी नहीं आता, कोई बुरा बुरा वो करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे नहीं आता ये वो। आप स्टार्ट करो अभी से, और एक एक चीज़ें ऑर्गेनाइज वे से मेंशन है ये। हाउ टू यूज़ मल्टीमीटर, हाउ टू यूज़ लॉजिक एनालाइजर, वाटसन ऑसिलोस्कोप, उसको यूज़ कैसे करते हैं। पीसीबी डिज़ाइन अगर किसी को इंटरेस्ट है, वीएलएसआई साइड, तो वो भी पढ़ सकता है। सोल्डरिंग कैसे करनी है, तो सोल्डर किट आती है आपकी 200-300 रुपए की, आप इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में जाओ कानपुर के, वहाँ से खरीद लो। थोड़ा घर में एज अ एम्बेडेड इज ए लाइक हॉबी, ये एम्बेडेड फील्ड की जॉब ना, आपको प्रेशर, अगर आपको मन लगता है इसमें एम्बेडेड फील्ड में, तो ये कोई वैसा प्रेशराइज जॉब नहीं होता। आप फन, लाइक कुछ लोगों का हॉबी होता है इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्क करना, मेरा था बचपन में, इसीलिए मैंने लिया था। सो चीज़ें समझनी पड़ती हैं, इतना आसान नहीं होता, लेकिन बट मज़ा आता है करने, काम करने में। सो ब्रेडबोर्ड यूज़ करना कैसे है, पीजीए डिज़ाइन क्या होता है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्या है, डिज़ाइन पैटर्न, यूएल मेमोरी एलोकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सी पढ़नी है तो कौन से अच्छे ट्यूटोरियल हैं, देखो सबका लिंक दिया है। सबसे बेस्ट जो है ना, ये तो डेनिस रिची की बुक है आई थिंक। डेनिस रिची, उन्होंने सी का खोज किया था, तो ये उनका लिंक है। ये अभी यूएस की साइट्स खुल रही है, इंडिया का करोगे तो सस्ता मिल जाएगा। एंड सी प्लस प्लस के हैं, असेंबली के हैं, जीसीसी कैसे है, जीसीसी कंपाइलिंग, हाउ टू सी में गुड,
बैश स्क्रिप्ट, डॉकर, वर्जन कंट्रोल, गिट, वन लर्न गिट इन 1 आवर। बस यही मैंने भी यही पढ़ा है। 1 घंटे में गिट आपको समझ में आया क्या है। काम भी शुरू कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे काम करना, 2-3 दिन कर लिया तो आपको आ जाएगा गिट यूज़ करना। और फिर डेली अपने गिटहब में कोई भी छोटा सा भी प्रोग्राम लिख ले हो ना, तो विजुअल कोड में लिखो, गिटहब में पुश करो, डेली करो ये। तो गिट की भी प्रैक्टिस डेली होती रहेगी। गिट होता है ना, गिट स्टेटस, गिट कमिट। कमिट करने के लिए क्या होता है, गिट कमिट मैसेज लगा के, या गिट फिर चेकआउट कैसे, किसी रिपोजिटरी को चेकआउट कैसे करना है, सब समझ में। अब जैसे ये जो मैं शो कर रहा हूँ, ये गिटहब की एक प्रोफाइल है, ठीक है ना। ये देखो, ये मैसम परवेजी की प्रोफाइल है, जिसको मैंने फोर्क किया। अब ये मेरे मेरे गिटहब में शो कर रही है। अब आपको यहाँ से फोर्क करना है ना, मैं ये लिंक शेयर करूँगा, आपको बस यहाँ जाना है, फोर्क पे क्लिक करना है, और फोर्क इन माइक आप करोगे तो आपके रिपोजिटरी में आ जाएगा। तो जब गिट गिट का ट्यूटोरियल पढ़ोगे ना, तो ये सब समझ में आ जाएगा कैसे किसी रिपोजिटरी को क्लोन करना है, क्या करना है। तो ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ ना, इसमें लगभग 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 क्या 90% सब आपको मिल जाएगा जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। एडीसी, जीपीआई, ओडीएसी, टाइमर, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया है। और कुछ जानना है तो यूट्यूब में करो, और नहीं मिल रहा है तो मुझसे कनेक्ट करो। मतलब आई विल से लाइक, तुम्हारे पास अब मटेरियल सब है, तुमको पता भी चल गया है तुमको करना क्या है। अब बस ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम करते हो कि नहीं करते हो। ओके। अब आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझको पता नहीं है क्या करना है, मुझको कहीं मटेरियल नहीं मिले, मेरे पास पैसे नहीं है कोर्स खरीदने के, कुछ भी आप कोई एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपको सब आपके पास है। बस आपको अपने ऊपर काम करना है। सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आरटी थ्रेड, डिजिटल सिग्नल, फॉरियर सीरीज, मैटलैब। मैटलैब किसी आई थिंक कोई मैटलैब के बारे में पूछ रहा था। Yes, आदित्य, sir. हाँ सौरभ। सो मैटलैब का भी गेटिंग स्टार्टेड, ये सब मैटलैब गो फ्रॉम जीरो टू हीरो। 2-3 दिन बैठो, मैटलैब खत्म कर लो, अपने रिज्यूमे डाल लो कि भाई मुझको मैटलैब भी आता है। जेटैग में क्या होता है, जीडीबी क्या है, फाइंड बग्स योर कोड ओनली विद a फ्यू कमांड। ओके। सो ये एक लाइक मैं अपनी नज़र से देखूँ था, एक खजाना है, ठीक है। सो एकदम फ्री में अवेलेबल है। और इंसान की क्या फितरत होती है ना, कि जो चीज़ उसे फ्री में मिलती है उसकी वो इज्जत नहीं करता। और ये होगा, आपके साथ भी होगा, क्योंकि आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझको सीखने में मुझको 2 से 2.5 लाख रुपए बीटेक के बाद लग गए। आपको मैं एक बार में ये सिखा रहा हूँ, एक बार में ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। सो मोस्ट ऑफ यू विल लाइक अंडर एस्टिमेट कर दोगे कि अरे यार ये तो ऐसे ही मिल गया आराम से। जिनसे पूछो ना, जो सर्च करते हैं उनको मिलता नहीं है, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता। उनसे पूछो अगर ये मिल जाए तो वो कितना खुश होंगे, कितना मतलब लगता है अरे यार पूरा खजाना ही मिल गया आज मुझे तो उस टाइप की चीज़ है। सो इसका यूज़ करो। अंडर अंडर अभी यही मैं इसको करके चाहे तो बेच सकता हूँ। हाँ भाई ये कोर्स मैं बेच रहा हूँ इतना, एम्बेडेड सिस्टम रोड मैप का है, 1,000 रुपये 2,000 लोग खरीदेंगे भी। वही सब करते हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ बेच ही रहे हैं। सो जब कुछ चीज़ें फ्री में मिलती हैं तो उसको अंडरस्टेटमेंट नहीं करना चाहिए। सो वही मैं कह रहा हूँ कि अभी अंडरस्टैंडमेंट करना, इसको पढ़ो, एक एक चीज़ें सीखो। एंड एक पोस्ट मुझको दिखाना था, दिख रहा है लिंक्डइन का पेज। Yes, sir. सो ये एक कोई है यासीन राही, कोई फॉरेन का इंजीनियर है, इसने बहुत अच्छा शेयर किया था आर्टिकल। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सिर्फ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोड मैप है, ठीक है, कोई और नहीं। तो अगर इसमें ये देखो, इतनी सारी चीज़ें आनी जरूरी, लेकिन मस्ट हैव क्या है, एम्बेडेड सी। ओके। सी प्लस प्लस भी इन्होंने लिखा है मस्ट हैव, बट अभी स्टार्ट करने के लिए मस्ट हैव नहीं है। हाँ, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस तो आपको सी प्लस प्लस आनी चाहिए। स्टार्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से आपको सी आना मस्ट हैव है। पाइथन नाइस टू हैव, असेंबली नाइस टू हैव, मतलब अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बुरी बात नहीं है। बट सी आना मस्ट हैव। अब बिना सी के आप अपने आप को एम्बेडेड इंजीनियर नहीं कह सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल आना मस्ट हैव है। आर्टोस आना मस्ट हैव। लिनक्स अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो
कोई बात नहीं, अगर आता है तो आपके रिज्यूमे में ऐड करेगा, अदरवाइज कोई। बट जो मस्ट हैव चीज़ें हैं ना, मैं ये पूरा पोस्ट शायद व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दूंगा। तो जो मस्ट हैव चीज़ें हैं एटलीस्ट उन पे काम करना शुरू करो। 1 साल है, अगर आप 15 दिन में भी अगर आप एक टॉपिक उठाते हो ना, कि लेट्स से सी के लिए मैं 20 दिन का डेडिकेटेड टाइम फ्रेम देता हूँ, जिसमें मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा और हैकर रैंक पे प्रैक्टिस करूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा। ये नहीं करना कि एम्बेडेड सी भी शुरू कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी शुरू कर दिया, उधर प्रोजेक्ट भी खोजने लगे। तो ऐसा नहीं, एटलीस्ट जो ह्यूमंस होते हैं ना, वो फोकस काम ही कर सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि मैं मल्टीटास्किंग कर लेता हूँ बहुत सारे काम एक साथ, तो वो होता नहीं है कुछ ऐसा। सो आप 1 या 2 टास्क पे फोकस करना शुरू करो। लाइक एम्बेडेड सी ले लिया, मैं गोल बनाऊँ 20 दिन का, मैं एम्बेडेड सी खत्म करूंगा, हैकर रैंक पे सॉल्व करूंगा, और उसके साथ मैं अपने प्रोजेक्ट का खोज करूंगा कि मुझको किस पे काम करना है, किस तक ऐसा प्रोजेक्ट खोजूं जिसमें मेरी 2-4 स्किल्स जो मुझको सीखनी है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए, ताकि मुझको काम करते करते मैं वो स्किल सीख जाऊं। ओके, तो वो प्रोजेक्ट डिसाइड करना बहुत ही क्रुशियल है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आ गया। नेक्स्ट आप 15 दिन का ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो। अब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ूंगा, क्या होता है कैसे होता है, सारे ट्यूटोरियल मेरे पास हैं, सारे लिंक मेरे पास हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ लो, ठीक है। फिर एम्बेडेड सिस्टम कॉन्सेप्ट, माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर और पेरिफेरल्स क्या है। मुझे पता है अभी 4th ईयर में कुछ बंदे होंगे जिनको माइक्रो कंट्रोलर का कुछ भी नहीं पता होगा, कि जीपीआई क्या होता है, कुछ क्या होता है। वो हमारे टाइम में भी थे, आपके टाइम में भी होंगे, उसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरप्ट क्या होता है सुनना, पहली बार सुन रहे हैं। ये सब चीज़ें जब इंडस्ट्री में जाओगे तो डेली सुनोगे, अभी पहली बार सुन रहे हो। सो अभी से एक्सप्लोर करना शुरू करो। अगर ये तुमको आता रहेगा, कोई भी रिक्रूटर आराम से तुमको हायर करेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें उन्हें को सिखानी पड़ती हैं। अगर तुमको पहले से आती रहेंगी तो तुमको हायर करना सबसे अच्छा रहेगा। ओके, तो इसमें जो मस्ट हैव चीज़ें हैं ना, वो तो आप सीखो ही सीखो। और अगर किसी को कन्फ्यूजन है कहाँ से सीखना सर, क्या कैसे करना है, तो वो कर सकता है। मैं भी सिखा सकता हूँ, बट वही है कि मेरा अभी फुल टाइम जॉब है, फिर फैमिली है। मैं सिखा सकता हूँ बट टाइमिंग आप लोगों को सूट नहीं करेगी, क्योंकि मैं मॉर्निंग वाला पर्सन हूँ। 5 बजे उठता हूँ, तो तो सुबह के मेरे पास टाइम रहता है 1-2 घंटा। तो आप ये जो मस्ट हैव चीज़ें हैं वो सीखना शुरू करो। यू आर आई या एस पी आई आई टू सी, ये सब प्रोटोकॉल्स हैं, ये तो आनी ही आनी चाहिए। और एम्बेडेड डेवलपमेंट टूल, आईडी जो होते हैं, बोलते हैं मतलब, जैसे आईडी इन द सेंस विजुअल स्टूडियो सुना होगा। ओके, एसटीएम का एसटीएम क्यूब आईडी होती है, जो जिसपे मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं उनको आईडी बोलते हैं। तो 1-2 आईडी आना जरूरी है। डिबगर आपको बताया ही मैंने, ये जेटैग एस डब्ल्यू डी जी डी बी, ये सब मस्ट हैव स्किल्स हैं। ओके, मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक वीडियो। मेरे 4th सीडेक में हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था। सर हाँ। सर ये पूछना था, जैसे कि अब इसमें जैसे एक टॉपिक लिख गया कि जैसे एस पी आई आई टू सी लिखा है मस्ट हैव, हम्म। बट ये कैसे पता लगे कि मतलब इसको कितना पढ़ना है? क्योंकि आई टू सी का तो एक नॉर्मल 10 मिनट का भी लेक्चर होता है, मतलब नहीं जो। नहीं, 10 मिनट वाला लेक्चर नहीं, इतना पढ़ना है कि आपको अगर रियल हार्डवेयर दे कोई, तो आप ये कर लो। बस मैं ये नहीं कह रहा कि थ्योरी पढ़ने की, मैं रियली इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा हूँ। सो जब आई टू सी इम्प्लीमेंट करोगे ना, ट्राई करो एक बोर्ड लो या आर्डिनो या कुछ। अब उस पर देखो कि आई टू सी से दोनों बोर्ड को कनेक्ट करो। आई टू सी एक वायर होती है, 2 सिग्नल वायर प्रोटोकॉल। तो आप कनेक्ट करके आई टू सी प्रोटोकॉल का यूज़ करके भेजना की कोशिश करो, तब आपको समझ में आएगा आई टू सी क्या होती है। वो थ्योरी, 5 मिनट की थ्योरी की आई टू सी इज लाइक वो बाई डायरेक्शनल प्रोटोकॉल, इट हैज इतना स्पीड, इतना ये सब नहीं। ये सब तो सबको आता है। थोड़ा इन डेप्थ कि क्यों होते हैं रजिस्टर, अगर कैन में यूज होता है तो क्यों होता है। एस पी आई अगर 4 वायर प्रोटोकॉल है, एस पी आई और आई टू सी कब यूज करनी है, दोनों प्रोटोकॉल है भाई। तुम आई टू सी यूज क्यों कर रहे हो, एस पी आई क्यों नहीं यूज कर रहे हो,
कोई पूछता है अगर, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। अरे सर, एसपीआई का क्या होता है, छोटी डिस्टेंस में फास्ट कम्युनिकेशन होती है। आई टू सी थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बट स्लो कम्युनिकेशन होती है। सो बोथ हैव देयर ओन एडवांटेजेस। सो एसपीआई यूज होती है जब मेमोरी इंटरफेस, कोई मेमोरी को माइक्रो कंट्रोलर में जोड़ना हो। तो क्योंकि मेमोरी में डाटा बहुत तेज आपको ट्रांसफर करना होता है ना, तो वहाँ एसपीआई यूज होता है, वहाँ आई टू सी आप यूज नहीं करोगे क्योंकि स्लो होता है। बट आई टू सी क्या है कि आपको थोड़ा दूर का कम्युनिकेशन और सॉलिड कम्युनिकेशन चाहिए और मल्टी मास्टर चाहिए, तो आप आई टू सी यूज़ करोगे। तो ये बहुत अच्छा डाउट तुमने पूछा। मतलब कि ये जो छोटे छोटे से लेक्चर होते हैं ना, वो नहीं करना है। एटलीस्ट करना है इतना कि मैं इम्प्लीमेंट करके देखूं यार ये असल में है क्या, कि कैसे ये सुना तो है एसपीआई पे डाटा यहाँ से यहाँ चला जाता है, बट कभी हेलो वर्ल्ड एक माइक्रो कंट्रोलर से भेज के दूसरे पे देखो तो। एक पे आप डिस्प्ले लगाओ, दूसरे पे डिस्प्ले लगाओ। एक पे आप हेलो वर्ल्ड मैसेज लिखो और उसको दूसरे माइक्रो कंट्रोलर पे भेजो। ओके, तब पता चलेगा हाँ आई टू सी ऐसे वर्क करती, इसका ये काम है, वाह, तब समझ में आएगा। वो चीज़ उस लेवल का सीखना है, ठीक है। और कोई डाउट? सर फिर इसके लिए लगभग हर टॉपिक के लिए हमारे पास मतलब उसका हार्डवेयर होना चाहिए। नहीं, हर टॉपिक का हार्डवेयर कैसे होना चाहिए? आपको मैं बताया ना, सिर्फ एक या दो माइक्रो कंट्रोलर होने चाहिए। और ये जो सब चीजें हैं ना, आई टू सी एडीसी, ये सब अगर एस टी एम 32 का न्यूक्लियो बोर्ड ले लो, तो कभी देखा है न्यूक्लियो बोर्ड एस टी एम 32 का? नो सर। 99% चीजें उसमें ही होती हैं, ऑलरेडी होती हैं। ये देखो, इसमें ही डीबगर भी है। ये मेन चिप होती है ना, ये आपका प्रोसेसर है, ठीक है। और इसमें ही आपका डिबगर है, जे टैग वगैरह सब इसमें ही रहता है। जो ये डिबगिंग का मैकेनिज्म है, इसमें ही आपके देखो, अभी तुमको बस ध्यान से देखना, देखो पीडब्ल्यूएम है, ठीक है। यस सर। ये मोसी मीसोस दिखाई दे रहा है। मोसी मीसो किस में यूज होते हैं बताओ कोई? सर एसपीआई एस में। यही एस पी हाँ, आई। गुड। सो देखो, एसपीआई भी इसमें इंटीग्रेटेड है, ठीक है। और देखो, टीएक्स आरएक्स दिख रहा है नीचे, यस सर, यू आर्ट में। यूआर्ट भी होता है, ठीक है। और पावर के लिए है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इसमें नोटिस, जब इसका डेटा शीट खोलोगे ना, तब पता चलेगा, ठीक है। इसमें तुम्हारा आई टू सी भी होगा, एसपीआई भी होगा, सब है। सो कुछ हार्डवेयर नहीं खरीदना। हार्डवेयर तब खरीदना है जैसे एक टेम्परेचर सेंसर खरीद लिया, 10 रुपए का मिलता है पर टेम्परेचर सेंसर। अब टेम्परेचर सेंसर को तुम इस बोर्ड से जोड़ो और अपने रूम का टेम्परेचर रिकॉर्ड करो। एक डिस्प्ले 50-100 रुपए का आता है, 8 बिट डिस्प्ले खरीद लिया, और उस डिस्प्ले पे प्रिंट करो, तो हार्डवेयर आपका 100-50 रुपए का आता है। ये जो हार्डवेयर है ना, एक न्यूक्लियो बोर्ड, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, शायद 1200 रुपए का है। ओके, देखो, तो एक चीज है, इसमें 50 चीज ऑलरेडी सब आपको मिल जाएंगी, एडीसी डीएसी सब कुछ इसमें इंटीग्रेटेड होता है। तो एक आपको हार्डवेयर लेना बहुत जरूरी है, बाकी सब चीजें 10-20-50 रुपए की मिलती हैं। तो ये इशू नहीं है कि आपके पास है नहीं, ये नहीं है। समझ में आया? ये सब जितना देख रहे हो ना, सब एक न्यूक्लियो बोर्ड में मिल जाएगा। आर्टस आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है, आपको बस पोर्ट करना आना चाहिए। लिनक्स आपको फ्री में मिल जाएगा, ये सब सीखना आपको फ्री में ही कर सकते हो। तो आपको क्या चाहिए? कैन, कैन भी ऐसा आई थिंक न्यूक्लियो या STM32F4 में कैन भी मिल जाएगा। कैन भी रहता है, ब्लूटूथ भी रहता है। तो कोई हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, बस सीखने के लिए अलग होनी चाहिए। और सर जैसे कि इंडिविजुअली ये टॉपिक्स करने की जगह, जैसे मान लीजिए हम केवल STM32 न्यूक्लियो का थोड़ा डिटेल्ड अगर पढ़ते हैं, हम्म। तो उसी में जैसे सारे टॉपिक्स अगर कवर हो जाए, इस टाइप का कुछ होगा सो या किसी। उसमें अभी जैसे न्यूक्लियो का तुम कवर करो पढ़ोगे ना, तो डेटा शीट में आपको पढ़ाया नहीं जाता कि क्या होती है आई टू सी प्रोटोकॉल। उसमें आई टू सी के स्पेसिफिकेशन दिए रहेंगे कि ये जो आई टू सी इस बोर्ड में है, इसकी स्पीड ये है, और ये इतने बिट एक बार में ट्रांसफर कर सकती है, वो सब बता। वो ये समझ के चलता है कि भाई ये माइक्रो कंट्रोलर जो खरीद रहा है, उसको पता होगा कि आई टू सी होती क्या है। तो वो आई टू सी नहीं समझाते। ओके,
वो बस ये डिटेल देंगे कि I2C में ये 1.3 Mbps का इसका स्पीड है, इसमें इतने बिट का पैकेट रहेगा, ये इसमें चीज़ें आर्बिट्रेशन है, तामझाम जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन वो देगा। वो आपको ये नहीं सिखाएगा कि कैसे इसको करना है, ये क्या होता है, वो सब चीज़ें नहीं दिखाएगा। जैसे स्पेसिफिकेशन है ना, तो डेटा शीट आप जब पढ़ोगे तो डेटा शीट में ये सब चीज़ें रहती है। ये नहीं रहता कि ये कैसे सीखना है। सीखना तो आपको ये पड़ेगा किसी कोर्स या किसी के बारे में कि ये होती क्या है, चीज़ें क्यों यूज़ होती हैं। ये सीखने के बाद फिर आप एक बोर्ड पे इम्प्लीमेंट करो, देखो रिजल्ट। अरे इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आता है जब आपको कुछ एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड पे ट्रांसफ़र करोगे ना, तब फील होगा कि हाँ यार कुछ बढ़िया बनाया है। मैं वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वो मेरी आईडी में है। लॉगिन करना पड़ेगा। हम्म, हम लोग ने सीडेक के टाइम कैन पे प्रोजेक्ट बनाया था। और दिख नहीं रहा है यार, साइन आउट करना पड़ेगा। ओके, मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा। बनाया था हमने 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 क्या प्रोजेक्ट बनाया था कि एक दो बोर्ड है। पहले स्टार्ट तो किया था STM32 से, बट वो STM32 पुराना बोर्ड था, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था बोर्ड ही। तो फिर लास्ट मोमेंट पे हम लोग ने आर्डिनो बोर्ड लिए दो, उनको कनेक्ट का एक मतलब रियल वर्ल्ड कार का वो बनाया था कि कार कार के आगे दो हेडलाइट्स हैं और दो इंडिकेटर हैं, एक वाइपर है और पीछे इंडिकेटर हैं। सो अगर बारिश होती है तो वाइपर चालू हो जाना चाहिए। और अगर लेफ्ट इंडिकेटर, और दो माइक्रो कंट्रोलर कनेक्ट किए थे, एक आगे और पीछे। एक आगे वाला आगे के ECUs को दिखाता था और पीछे वाला पीछे। एक कंप्लीट कार बनाया था और उसको कनेक्ट किया था कैन बस से। सिर्फ 2 वायर कम्युनिकेशन होती है कैन, तो उससे कनेक्ट करके हमने ये शोकेस किया था अगर बारिश होती है तो वाइपर आगे भी चालू होगा तो वो पीछे भी चालू होगा। और ये सब चीज़ें मतलब वाइपर नहीं लगाया था, बस वो डिस्प्ले में दिखाते थे हम लोग कि वाइपर स्टार्टेड। और लेफ्ट इंडिकेटर दिया तो आगे वाला डिस्प्ले भी दिखाता था कि लेफ्ट इंडिकेटर स्टार्टेड, पीछे वाला भी दिखाता था कि लेफ्ट इंडिकेटर स्टार्टेड, एक साथ ही। तो ये एक तरह का डिपिक्ट करता था कि हाँ। तो हम लोग का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हुआ था। तो उसी बेसिस पे मेरा भी सिलेक्शन, मतलब वो जो इंटरव्यूअर था उसने पूरा प्रोजेक्ट पे ही बेचा था, कैन पे ही, कि क्या होती है कैन कैसे, क्योंकि कैन एक ऑटोमेटिव इंडस्ट्री की बहुत नोन प्रोटोकॉल है, कैन आनी चाहिए। तो ये आर्टिकल भी अच्छा है। सो आई थिंक, और कोई डाउट्स है किसी को? इतना ये मैं शेयर किया ना, और कुछ तो हाँ, ये ओके, एक और है। हम्म, हाँ। सो ये मनीषा सच्चिदानंद ने शेयर किया था। सो इन्होंने यूट्यूब आई थिंक लिंक दिए हैं बहुत सारे पढ़ने के। सो इसमें से भी आप एक्सप्लोर करना चाहो तो ये भी मैं भी भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। प्रोजेक्ट आइडिया अगर देखने हैं, और मॉडर्न एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम पॉडकास्ट। और किसी को अगर ज़्यादा मतलब डीप लेवल में सीखना है ना, तो मैं एक चैनल है ये, वी हंटर एडम्स। ओके, अभी ये स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। हाँ। सो ये वी हंटर एडम है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नेल्स, सुना है, उसके प्रोफेसर हैं। सो ये अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और ये सारे इनके ट्यूटोरियल रास्पबेरी पाई पिको पे हैं। सो रास्पबेरी पाई पिको से एक बहुत ही सस्ता वो होता है आई थिंक, बोर्ड। पता नहीं कितने का है, देखते हैं। देखो, 349 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। ये शायद अमेजन वगैरह पे भी मिल जाएगा। 499 का, 599 का है। सो अगर रास्पबेरी पाई से स्टार्ट करना है ना,
तो ये इनका मैं शेयर करूँगा, वी हंटर एडम्स। ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बहुत अच्छा, मतलब डीपली आपको समझना है एकदम से कि हाँ भैया, फिर एकदम लेवल का। तो ये एक प्लेलिस्ट है इनकी पूरी, रास्पबेरी पाई पिको पे। कोर्स का इंट्रोडक्शन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ओवरव्यू, टाइमर्स अगर सीखने हैं, टाइमर इंटरप्ट, एसपीआई, डायरेक्ट डिजिटल सिंथेसिस, मल्टी कोर क्या होता है, प्रो थ्रेड क्या होता है, एडीसी और डीएमए क्या होता है। डीएमए होता है डायरेक्ट मेमोरी, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, एक हार्डवेयर होता है। तो ये सब के बारे में अगर जानना है तो ये एक पूरी प्लेलिस्ट है। किसी के पास अगर बहुत अच्छे से ज़्यादा इंथुजियास्टिक है, मतलब हाँ मुझको एकदम डीपली जानना है, तो ये फॉलो कर सकता है। इसका लिंक कैसे शेयर होगा? सो इतनी सारी चीज़ें देख के ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही मिल गया? ओवर तो नहीं हो रहा ना? ये सर सिलेबस बहुत वास्ट हो रहा है। हाँ थोड़ा वास्ट है, बट मैंने बताया ना कि चालू कहाँ से करना है। वो गया। तो आप अभी इतना सब देख के वो मत करो कि मैं ये भी कर दूँ वो कर दूँ, ऐसा नहीं। स्टार्ट ये गिटहब प्रोफाइल से करो। मैं बोला ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल, ये एक हफ्ते का मॉड्यूल है, ठीक है? तो आप, कोई जल्दी नहीं है कि मुझको ये, आपके पास पूरा 1 साल है, बहुत टाइम है। सो एक या हफ्ते या 15 दिन का गोल बनाओ, यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करो। पहले ये जो इन्होंने सारे लिंक दिए हैं ना, यहाँ से फॉलो करना शुरू करो। ये सब सीखो और एक एक करके, जो एटलीस्ट इस साल के एंड तक जो येलो हाईलाइटेड है ना, रिक्वायर्ड, उनको कंप्लीट करो। उसके बाद रिकमेंडेड में जाना। और कोई भी कुछ भी बताया उसका सुनने की जरूरत नहीं है, बस इसको सिंपली फॉलो करो। क्योंकि ये जो जिन्होंने शेयर किया है वो ऑलरेडी बहुत लेवल के प्रोफेसर वगैरह हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के। मैं देखो लोकल टीचर्स के फॉलो भी नहीं करता, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के लोग अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज के हैं। इनका अगर अभी एसपीआई और यूटी आई2सी का ये पढ़ोगे ना, इतना बढ़िया समझाया है, मतलब एक पूरा उसके साथ। तो ये थोड़ा डिटेल में इनका मतलब वो है। तुम बोल रहे थे ना कि ये वो दो दो लाइन का, 2-4 लाइन का होता है ये वो, इसमें पूरा डिटेल में समझ, अगर इतना पढ़ लोगे तो किसी भी इंटरव्यू का आई2सी एसपीआई क्रैक कर दोगे। तो इस लेवल का पढ़ना है। देखो यहाँ पूरा डाटा शीट, पूरा डेटा शीट समझाइए कि एक एक रजिस्टर्स क्या होते हैं, स्लेव एड्रेस, एक बिट को चेंज करने पे क्या होगा। सो चीज़ें एक्सप्लेयर यहाँ से कर सकते हो। ये सब मैं शेयर करूँगा। अभी बस ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस स्टार्ट करो एटलीस्ट। क्योंकि स्टार्ट करना सबसे पहला कदम सबसे ज़रूरी होता है। फिर देन यू विल, अपने आप ही कुछ चीज़ें समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, फिर कुछ सीखोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। और ये सब कंपोनेंट होने से ये हेल्प होगी कि कहीं कुछ कन्फ्यूजन हुआ, डाउट हुआ, तो आप इन्हीं चीज़ों में खोज सकते हो। 2-4 चीज़ें, एम्बिट्रॉनिक्स वेबसाइट अच्छी है, मुझको अच्छी लगती है। रेस्पबेरी पाई का भी शेयर ही किया, ये गिटहब में शेयर कर देता हूँ, रोड मैप। ओके, ये शेयर कर दिया। क्लोज हो गया। आपको पता है कि नहीं, गिटहब पे आप वेबसाइट भी बना सकते हो? किसी को पता है? वो जो पोर्टफोलियो मैंने शो किया था ना, वो एक वेबसाइट की तरह ही काम करता है। और ये देखो, ये जो वी हंटर एडम्स है ना, इन्होंने गिटहब पे ही अपनी वेबसाइट बनाई है, एज अ वेबसाइट बना के अपने कोर्सेज को पोस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ गिटहब पे फ्री में बना सकते हो, एक ही बनती है लेकिन बना सकते हो।
तो ये चीज़ भी है, चाहे तो एक्सप्लोर करो, चाहे तो आप उसको अपना पोर्टफोलियो दिखाने के लिए यूज़ करो, या आप अपना प्रोजेक्ट्स को दिखाने के लिए यूज़ करो। आप गिटहब का एक आयो पेज बना लो, सर्च करना यूट्यूब में हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो पेज और वेबसाइट पेज फॉर ऑन गिटहब। सो आपको पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, वहाँ आप अपने प्रोजेक्ट का एक शोकेस करने का बना सकते हो, या अपने प्रोफाइल बना सकते हो, रिज्यूमे बना सकते हो, कुछ भी। एक आईडी पे एक एक वेबसाइट बन सकती है। सो वो एक्सप्लोर करो आप लोग अभी। तो ये रोड मैप शेयर कर दिया, ये वी हंटर एडम्स का कोर्स शेयर कर दिया, यूट्यूब प्लेलिस्ट। और क्या बचा है? एक और पोस्ट था ना, सॉरी। आई डोंट नो ये लिंक काम कर रहे हैं कि नहीं, चेक करना। ओके, ये ऐसे नहीं जाएगा। हाँ, आई थिंक चल रहे हैं। सो ये लिंक चेकआउट कर सकते हो। एंड ओके, और कुछ? एनीथिंग आई एम मिसिंग? सब लोग ट्राई करो एक न्यूक्लियर बोर्ड या पिको बोर्ड, कोई भी एक एज अ स्टार्टिंग आर्म आर्किटेक्चर बेस्ड बोर्ड एटलीस्ट परचेस कर लो एंड स्टार्ट विद दैट। चाहे रास्पबेरी पाई भी आप ले सकते हो, रास्पबेरी पाई पिको। बट आई विल आर्डिनो पे काम मत करना, आर्डिनो अपार्ट फ्रॉम आर्डिनो कोई भी करो। एनी डाउट्स एनीवन? किसी को कोई डाउट्स है? ये स्टार्ट करो, कोई डाउट्स अगर फ्यूचर में आए यू कैन कनेक्ट विथ मी। ओके, एंड first I will say like try to ask clear your doubts in sessions, because अगर आप अपने तक रखते हो तो वो फिर रह ही जाता है डाउट हमेशा। so बोलते हैं like uh, you are a fool if you ask a doubt, you are a fool at once। अगर आप डाउट पूछते हो आप एक बार बेवकूफ बनोगे, बट इफ यू डोंट आस्क यू आर फूल फॉर लाइफ। ओके, so try to ask। okay, let me know if you need anything else। Today only four members are here. Just I will try to share this, or you can share this also with everyone. Okay. Anything else? Anyone? सर जो आर्म बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर्स हैं तो पहले उनको पढ़ें कि ना, मतलब पूरा आर्म आर्किटेक्चर पढ़ें कि डायरेक्ट वर्क करें? नहीं, पहले हम बेस बोर्ड खरीदो, फिर उसकी डाटा शीट पढ़ो कि है क्या, फिर आर्म आर्किटेक्चर पढ़ो और क्या होता है डिटेल। एटलीस्ट बोर्ड तो आपके पास में होना चाहिए, दिखना तो चाहिए कि क्या चीज़ें पढ़ रहे हो क्या नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ें ज़रूरी है। पहले एक बोर्ड लो, वहाँ से डाटा शीट पढ़ो, आर्म आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ोगे तभी तो आर्म बोर्ड को समझ पाओगे, क्योंकि बोर्ड लेने पे तुमको समझ नहीं आएगा कि क्या है, कैसे इसका सारे एडीसी मेमोरी कैसे इसमें सब मिला हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है। सो पहले आर्किटेक्चर पढ़ो, फिर बोर्ड लो, उसकी डेटा शीट पढ़ो, और धीरे धीरे किसी प्रोजेक्ट पे काम करते टाइम फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ, लेट्स से कोई प्रोजेक्ट बनाया I2C पे या किसी पे, तो जब उस पर काम करोगे तो समझ में आएगा हाँ I2C के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और ADC पे या DMA पे
So in that way you start. Just start with some microcontroller. कुछ भी अभी सारे आउट ऑफ योर माइंड दैट आई विल शो आई शोड ना, वो येलो येलो जो रिक्वायर्ड थिंग्स है वो स्टार्ट करो। जब वन बाय वन आप चलते चले जाओगे ना तो धीरे धीरे सब समझ में आता चला जाएगा। ओके, चलो देन, हैप्पी संडे। दीपिका, यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर। हाँ। सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम जब पढ़ रहे हैं तो इसमें तो जॉब प्रोफाइल के हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी ना, जैसे इस मतलब इसमें कोई जॉब मतलब आई हुई है तो उसमें पूछा कि हाँ इससे रिलेटेड आपको कंप्यूटर चाहिए। नहीं नहीं, देखो ये जो मैं वही तो थी, फिर आप कंफ्यूजन में हो। जॉब प्रोफाइल कोई भी हो, चाहे ऑटोमोटिव में हो चाहे एरोस्पेस में हो, ये जो मैंने रिक्वायर्ड थिंग्स बताई है ना, ये चाहिए ही चाहिए। आप किसी भी एम्बेडेड फील्ड में जाओ, ये चीज आपको आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए। ये बताती है कि आपको बेसिक ऑफ एम्बेडेड आ गया। उसके बाद जो आप, अब अगर आपको ऑटोमोटिव में जाना है या ऑटोमेशन में जाना है या एरोस्पेस में जाना है, तो उससे रिलेटेड चीजें आपको हजारों चीजें, ये तो कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें हैं बेसिक। मतलब आपको एक नूब लेवल का एम्बेडेड इंजीनियर बनने के लिए ये सिर्फ बेसिक चीजें हैं। ये जब आएंगी तब आप इंडस्ट्री में घुसोगे। उसके बाद आपको लेट से ऑटोमेटिव जाना तो आपको ऑटोसॉर सीखना पड़ेगा, आपको कैन आनी चाहिए, आपको सी में सी कैन वही आनी चाहिए, डोर्स टूल आना चाहिए। हजारों ऐसे नए टूल्स हैं जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री से मिलते हुए हैं। अभी मैं एचवैक में हूँ। एचवैक एक नॉर्मल एम्बेडेड सिस्टम बनाती है, तो मैं यही सब जो इतना टूल आपको सिखाया ना यही यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं एरोस्पेस में था, हनीवेल एरोस्पेस, तो एरोस्पेस की गाइडलाइंस अलग होती हैं, उनके प्रोग्रामिंग करने का तरीका अलग होता है, इनके स्टैंडर्ड वो अलग फॉलो करते हैं सी और सी प्लस प्लस के। उनके रिव्यू करने का अलग तरीका होता है और सेफ्टी क्रिटिकल गाइडलाइंस होती है, तो बहुत ही अलग सिस्टम होता है। बट ये जो I2C SPI, ये जो भी बेसिक चीज़ें बताई, ये मत सोचो कि ये मुझे तो यार ये करना है तो ये सब क्या पढ़ के करूँगा। ये एटलीस्ट ये आएगी तब आप कुछ करने लायक बनोगे, बस ये जान लो। ये आने के बाद जो मैंने शेयर किया है तो कुछ लायक बनोगे। जब एक बार स्टार्ट करोगे तो कैसी भी इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमेटिव हो चाहे एविएशन हो या कोई भी जनरल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स आप ले लो, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। फिर आप जैसे जैसे जिस इंडस्ट्री में जाते हो वहाँ से वो चीज़ें सीखती जाओ। बस यही है कि अब किसी इंडस्ट्री में जाने के लिए ये सब चीज़ें आने ज़रूरी हैं। ओके, सो हनीवेल में